Welcome back to Urbanism Spinning. Today we have shot our third episode of podcast with Urbanism Spinning. We had a very special guest, architect Neelab Oberoi. He has 20 years of experience in the industry. Recently, he has won an award on designing outstanding office spaces. He has given some amazing insights on the architecture industry and on the architect education. So let's get started. Stay tuned and do let me know in the comment section what do you think about all the things we have discussed. I am providing the link of architect Neelab Oberoi in the description box. So let's get started. Welcome to Urbanism Spinning. Thank you, Moksha. Welcome to our office. Thank you. How is architecture treating you? यार अब तो it's kind of a very cliche question now. It's already been more than close to 20 years. 20 years. More than 20 years, right? Why did you choose architecture? That's a long story. I had just passed out class 10th and we were building a new house. So my father got transferred. So I got closely involved in the due process of constructing that house and that finishing and everything. So that kind of caught my interest. और वहाँ से फिर आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट आ गया. तब तक कुछ ऐसा था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है. अर्ली आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन कार्स एंड ऑटोमोबाइल. तो ये था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे. बट उसके बाद मुझे लगा कि दिस इज समथिंग बेटर. आई हैव ऑलवेज बीन अ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन राइट फ्रॉम अर्ली एजेस. Nobody in my house, nobody in my family rather, is into business. तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ ज़्यादा था. सो दिस फील्ड मेरे को अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा. एंड देन अल्टीमेटली आई थॉट दैट दिस इज समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस आल्सो. सो दैट वाज अनदर रीजन. So sir, why did you think कि बिजनेस पहले करना चाहिए? आपने जॉब की थी उससे पहले? जॉब की थी. कितनी देर? I had worked for around 2 years. And do you think job is important before starting the business? Definitely. Starting own practice, I would say it's business point of view तो एक definitely आ ही जाता है and should be there. But before you start, your own practice, you should definitely work under someone, work in an office. That actually teaches you the culture, systems, procedures, how to handle an office, how to handle projects. So that is very important. Because what happens is in college, that particular practical approach miss होती है कहीं ना कहीं. ये तो है. वो नहीं होती है. Rather I go to college, I go to Chitkara University for visiting professor. So this is one thing which I stress with the kids, with the students there, कि practical approach होनी बहुत ज़रूरी है. Secondly, जो एक missing चीज़ है वो ये है कि see ultimately this is going to be a business. 80% of the architects they do their own practice. So वो एक business management के skills जो हैं उसके ऊपर फोकस नहीं है अभी भी हमारे एजुकेशन करिकुलम में. सो दैट शुड आल्सो बी देयर. हाँ, बिकॉज आई फील जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो बस 5% है. नॉट इवन मतलब सी दैट्स अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो दैट्स जस्ट द फाउंडेशन. यस. Now it's on you. You make a 1-story house on that foundation, or you make a Burj Khalifa on that foundation. It depends on people. Yeah, true that. So sir, did you face any struggles while you were opening your office? स्ट्रगल तो आज तक चलता है. सर कैसे चीजों का? बहुत चीज़ों का स्ट्रगल चलता है. पहला प्रोजेक्ट शुरू में तो सी वंस यू स्टार्ट तो nobody trusts you. किसी को वही नहीं होता है. सो इट्स ऑलवेज प्रूविंग एंड प्रूविंग योरसेल्फ. आज तक होता है ऐसा. तो स्ट्रगल तो कभी ख़त्म नहीं होता. प्रोजेक्ट लाने के लिए पहले स्ट्रगल होता है. प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसको पूरा करने के लिए स्ट्रगल होता है. क्लाइंट को पहले प्रोजेक्ट हमें दे दो उसके लिए कन्विंस करने के लिए स्ट्रगल है. बाद में प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब क्लाइंट को ये कन्विंस करना कि ये जो हम बोल रहे हैं ये सही है, वो स्ट्रगल होता है. क्लाइंट को हर मोमेंट पे आपको कन्विंस करना पड़ता है. समटाइम्स क्लाइंट भी ऐसा होता है आपका कि वो शायद आपके कारपेंटर से या आपके कॉन्ट्रैक्टर से जल्दी कन्विंस हो जाएगा, आपसे नहीं होगा. सो वो तो स्ट्रगल तो चलता रहता है.
और सर आजकल जैसे सबको होता है कि हम आर्किटेक्ट से ड्राइंग बनवा लें, वेंडर्स अपने यूज करें, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्रेफरेबल है कि क्लाइंट को जो आर्किटेक्ट वेंडर सजेस्ट कर रहा है उसी के साथ काम करना चाहिए? इसमें ना एक बहुत बड़ा कैच है, एक मिसट्रस्ट की सिचुएशन हमारे ही फ्रेटर्निटी के लोगों ने या हमारे ही भाई बंधुओं ने या द पीपल our fraternity has created that mistrust because this is a general fact in the market. I don't say everybody is like that, but लोगों के दिमाग में एक बहुत क्लियर एक लोगों के माइंड में माइंडसेट बना हुआ है कि आर्किटेक्ट अगर कहीं से सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से मटेरियल ले लो या ये मेरे वेंडर्स हैं इनसे काम करवा लो या ये कॉन्ट्रैक्टर से कर लो, तो डेफिनेटली उसका कोई कट होगा बीच में। अब ये सब नहीं करते हैं, आई विल बी वेरी क्लियर, सब नहीं करते हैं, बट बहुत से लोग करते हैं। फिर क्या है कि when we I mean we entered architecture, that time architecture as a study course was very limited. There were very less colleges which were teaching architecture, which they had a course like architecture. तो सप्लाई लिमिटेड थी, क्वालिटी थी। अब सप्लाई हो गई है बहुत ओवर। आई थिंक अब पंजाब रीजन में ही हम बात करें, सो पंजाब रीजन वुड probably producing 500 to 600 architects every year. So where will they all go? They come in the market. So it's like if we are working for past 15-16 years and if a new person is coming in, he's they're just all over they collect pictures and this and that all over the internet, then they are hands on the software part, everything. So technical skills नहीं है, but उनके जो skills हैं and they will quote probably 1/10 of what we quote. So ऐसा नहीं होता है, लोगों को लगता है यार इन्होंने क्या करना है, ड्राइंग ही बनानी है, ऑफिस में क्या है क्या नहीं है, बट हर किसी के अपने खर्चे होते हैं, ये तो है। सो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस हम जो चार्ज करते हैं वो इसीलिए चार्ज करते हैं कि हमारे वो खर्चे पूरे हों। अब कोई कम फीस लेगा, खर्चे उसके भी उतने ही हैं, बट वो कहाँ से पूरे करेगा, वो फिर इस तरीके से पूरे करता है, वो क्लाइंट को समझ नहीं आता। डू यू थिंक कि आर्किटेक्चर एजुकेशन अब बिजनेस बन गया? आर्किटेक्चर एजुकेशन वाज ऑलवेज अ बिजनेस। ये है आई थिंक वो हमारी होली बुक्स में हम पढ़ते हैं कि एजुकेशन ये है वो है ऐसा है, एजुकेशन दान है ऐसा, बट एजुकेशन हमेशा से बिजनेस रहा है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे आपने कहा पहले कम आर्किटेक्ट्स होते थे, अब एकदम से इतने बढ़ गए, तो उस चीज ने क्वालिटी बहुत रिड्यूस कर दी है and people don't want to put their efforts on mind into designing a space. वही आपकी बात की वो डाउनलोड करेंगे कहीं से और वो रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं। One thing is reference, another thing is a copy. Yeah. रेफरेंस सब लेते हैं, everybody takes a reference from somewhere or the other. हम इतने सारे मास्टर आर्किटेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इतने नॉन आर्किटेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली वी टेक अ रेफरेंस फ्रॉम देयर वर्क्स, बट उसको सेम आप उठा के कॉपी कर दो, दैट इज नॉट अ स्किल। And do you think architecture education is responsible for this? See, education, like you already said, education is a business. So उनको तो अपना business करना ही है, उनको तो maximum students लाना ही है। But education is responsible for this. I would say कि like we've already discussed कि education is like 5%, 10% of what the market is. Technically आपको know how प्रैक्टिकली तभी पता लगता है व्हेन यू वर्क इन द मार्केट, व्हेन यू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, देन यू गेट टू नो कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, एंड वेयर यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट और समथिंग। अब यही क्लाइंट को नहीं पता होता। क्लाइंट बोलता है सर आप 5 लाख मांग रहे हो, दूसरा वो तो मेरे को 50,000 में हो रहा है काम, करवा लो। क्लाइंट को ये नहीं समझ में आता कि आप 2-2.5 करोड़ रुपए एक रेजिडेंस पे भी लगाओगे या एक फॉर दैट मैटर किसी भी प्रोजेक्ट पे लगाओगे, 5 लाख का अमाउंट जो आर्किटेक्ट को दे रहे हो वो बहुत बड़ा लगता है। बट आई टेल यू अ रॉन्ग आर्किटेक्ट और जस्ट यू में से क्लाइंट बोलता है यार मैंने 50,000 में ड्राइंग बनवा ली, काम तो हम खुद कर लेंगे, वो 5 लाख रुपए ना सिर्फ आपकी बिल्डिंग में जितना स्टील लग रहा है ना
शायद 15-20 लाख रुपए उसमें एक्स्ट्रा लग जाता है जो आपको आर्किटेक्ट सेव कर जाता है थ्रू अ स्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चरल इंजीनियर. देन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ड्यू कोर्स ऑफ फिनिशिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आर्किटेक्ट आपको सेव, जितना आर्किटेक्ट फीस लेता है उससे ज़्यादा आर्किटेक्ट सेव करता है, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड. इफ यू आर हायरिंग अ गुड टेक्निकली साउंड आर्किटेक्ट, he would rather save for you. He won't be that expensive. So anything you would like to change in 5 things in architecture education so that जो students है वो थोड़ा practically align हो? See, lot of changes are coming in. But student होते हैं. हम भी student थे. उस टाइम पे बंदे को ना इतना पता नहीं होता. You are not that maturity level is not that sound. Yeah, true that. So changes, I would say one thing, business management as a part of curriculum should be introduced at least for 1 semester as a subject. Practical internship जाती है, that is good, but internship should be increased to 1 year, I guess. Should be broken once after the second year, once after the 4th year, probably in the final year, should be broken that way. Or maybe every year 2 months of practical internship, practical training should be there after second year. So that will add more confidence and more practicality to the students. Because कई students ऐसा है कि as soon as they pass out they will be like यार हमें तो अपनी ऑफिस खोलना है, प्रैक्टिस करनी है. So वो practical training आपको तो मिली नहीं. 6 महीने की इंटर्नशिप भी आजकल बहुत सारे लोग डमी इंटर्नशिप कर लेते हैं. वो चीज़ मिलती नहीं है. और मैक्सिमम ऑफिसेज में इंटर्न्स को कितना काम दिया जाता है? कुछ खास नहीं. ड्राफ्ट कर दो प्लान, बस प्रिंट आउट निकाल दो. हाँ, तो मोस्टली यही होता है. ऑल्दो माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद इंटर्न्स आर लाइक दे डोंट नो मच, बट वी डेफिनेटली try that they get to know each and every aspect of a project in due course of 6 months. We take them to the sites also. We give them all types of work in the office itself, ताकि उनको सब चीज़ों का पता लगे. Not just ये आजकल इंटर्न्स का बेस्ट पार्ट होता है कि इंटर्न्स को 3D बनाने के लिए ही हायर कर लो, सस्ता आपको 3D विजुअलाइजर मिल रहा है. बट उससे क्या होगा? उसको तो सिर्फ 3D की नॉलेज मिलेगी. So recently you received award for designing outstanding office spaces. So please tell something about that. See, we've done a lot of offices. This is also our design only. So बहुत सारे offices हमने किए हैं. So this was a space that we did in Doha, Qatar. Okay. So we got this award for that space. Okay. So any 5 takeaways कि जब आपने ऑफिस डिजाइन करना हो तो क्या क्या ऐसा है जो माइंड में रखना चाहिए? सबसे पहले जिसके लिए ऑफिस डिजाइन करना है पहले उसको समझो. उनका वर्किंग स्टाइल समझो. फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स समझो. उन रिक्वायरमेंट्स को उनके साथ बैठ के डिस्कस करो. हाउ दे वर्क, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ देयर वर्किंग. उन प्रोसेसेस को वो करके फिर लेआउट पे जाओ. Then discuss the layout in detail with them. Sometimes client themselves don't know कि उनकी actual requirement क्या है. So layout को detail में discuss करो उनके before you freeze the layout. Then of course the designing is a separate part, like interiors is a separate part, but mainly is the flow of workspaces, how their work flows. So that is the most important thing if you want to be practically sound and sustainable in terms of your design being sustainable for a longer period of life. So what are the sustainable elements that someone can inculcate in designing office spaces? See, sustainable बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज की डेट में. sustainable मतलब ऑफिस स्पेसेस में आई वुड से लोकल मटेरियल्स यूज़ कर लो, ये सब कर लो. ये चीज़ें शायद प्रैक्टिकली कहीं पे काम आती हैं, कहीं पे नहीं भी आती हैं. But being sustainable, you go for automation. You go for more of you can put in, if it's a complete office building, you can put in solar panels and all for generating electricity.
internally, being sustainable, use materials which are like low carbon materials, especially if you talk about finishes, paints, other things. So इस तरह से है, but sustainable, I would say there are two terms of sustainability for me. One is material wise we make it sustainable. Other is an office or any other building being sustainable in terms that it requires lesser of maintenance, and your design itself being sustainable in terms that your design, people don't get bored of it after 6 months. You should be designing a space keeping in mind that if that space exists for another 10 years, 15 years, 20 years, it should look as it is. It should not change with the changing times. कि आपको लगे यार पुराना हो गया, बोर हो गए. For me, you will see mostly I work less in curves because curves make you bored very fast. Okay. आप 2-3 साल बाद शायद बोर हो जाओगे, यार ये कर्व्स क्या है. So I personally design spaces keeping in mind कि they should be long lasting. इसी से मुझे आइडिया आता है जब मीज वैन der Rohe he used to work in straight lines. अब हम क्या करते थे, कॉलेज में जाते थे तो our teachers used to say concept को ऐसे बनाओ, कर्व करो, but I like मीज वैन der Rohe because he used straight lines and very minimal spaces. Yes, I think there should be a spark point in your design. If you are working in a box, I don't say we should work in a box, and I personally don't work in a box, but there should be a spark point. आप पूरा स्ट्रेट कर लो, बट कहीं पे एक सर्कल ऐड कर दो, कहीं पे एक कर्व ऐड कर दो, या कहीं से उसको ब्रेक कर लो, स्कूप आउट कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन. फोकस एलिमेंट होता है. सो वो एक एलिमेंट उसकी आपकी मोनोटनी को ब्रेक करता है. सो वो चीजें हैं कि मतलब देयर आर hundreds of options how you can treat your design, how you can break it, you can make it, you can play with it. So it works like that. So do indoor plants play any role while designing the sustainable office spaces? Definitely they do. Plants anywhere, greenery, anywhere you put in greenery, that will definitely add to the environment, that will definitely add to the space. That brings in life. So we play with a lot of plants, even in indoors, outdoors. I generally, we were recently doing a project in Himachal, so there were a lot of trees in the site. So the client himself बोल ये कटवा देंगे, ये कटवा देंगे, ये कटवा देंगे. मैंने कहा नहीं, कोई पेड़ नहीं कटेगा, कि फिर बनेगा कैसे. मैंने कहा सब पेड़ ऐसे ही रहेंगे, हम इसके हिसाब से डिजाइन करेंगे. I would never prefer cutting a tree. So you recently started a restaurant with your wife. Please tell something about that. And your wife is also an architect. She has taught me. I'm very fond of Akriti ma'am. Please tell something about your restaurant. See, we are both big time foodies. Me and my wife. We rather came together. Yeah, we had an attraction for each other in college times because we were both very big time foodies. So our interests were common. So she actually, it's started by her. I'm just backing her up. I'm just a support element there. So she got bored of architecture. Yeah, I know, she told me. It generally happens with architects. So she was like, I want to do something else, and this was definitely one of our plans to do some food ventures somewhere in life. And we actually wanted to do something out of the box, out of the market, which was generally not much avid here. So we started a Lebanese Middle Eastern restaurant. Yeah, and the food is good. I have tasted. Thank you. And how do you think, a business point of view, say, was this decision a good one? See, business point of view से आपके चलाने पे depend करता है. Sooner or later, if you are consistent, so business will definitely pay you back. So business तो business है, ups and downs चलते रहते हैं. So a businessman's journey is always a roller coaster ride. Yeah. कभी up है तो कभी down भी आ जाता है. So it happens like that. So sir, I know that Akriti ma'am was visiting faculty in our college. Why did you choose to be visiting faculty? See, they were
I would say I didn't choose, but I was like, one of our teachers, she is the principal now in Chitkara School of Planning and Architecture. So she had told me a couple of times, she had asked me, you should come. And this time she said, you are coming. So I personally, I feel good when I go and interact with students. That breaks the weekly monotony of office. Secondly, when you interact with young minds, definitely I think I have something to pay them back. Once I interact with them, once I guide them, I share my practical knowledge from the field with them. So I think I can add to their curriculum something which generally college doesn't give you. Our practical knowledge enhances their skills to design spaces, working, even their thought process. Because as we were also in college, our thought process were very limited. So I personally try not to do that. हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स टीचर्स आके बोलते थे ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे नहीं होगा. बहुत सारे ये भी बोलते थे कि तुम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. सो मैं उनमें से हूँ जो बोलता हूँ कि कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. पर्टिकुलरली व्हेन यू आर जस्ट डिजाइनिंग इट ऑन पेपर, यू आर इन कॉलेज, जब आपने साइट पे नहीं बनाना है, सो एटलीस्ट why put a knuckle to your horses. आप फ्रीली डिजाइन करो, फ्रीली सोचो. कुछ भी हो सकता है. मैंने खुद ये अपने आर्किटेक्चर एजुकेशन के टाइम फील किया है कि जब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, वो कहेंगे नहीं, अगर आपने इसको स्ट्रेट बनाया है, इसको कर्व करो, कर्व बनाया तो इसको स्ट्रेट करो. तो इट इज अ डायलेमा कि क्या चीज है. बट मुझे ऐसा लगता है जब हम टीच कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिकली पहले ही उनको उस स्टेप पे रखना चाहिए, सो दैट उसके बाद वो अपनी जो स्टेप बाय स्टेप अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज करे. बट पहला जो बेसिक है, हम जैसे डिजाइन करते हैं, हमारे पास जैसे स्पेसेस अवेलेबल होती हैं या प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनको विद बायलॉ सब पहले ही बता देना चाहिए, और उसके बाद वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें एनहांस कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. अब लाइक आई गो एंड आई डू टीच डिजाइन ओनली इन कॉलेज. So when we are in the process of designing, उनका वो चल रहा होता है, कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम चल रही है, so वो नेक्स्ट वीक आके मेरे को बोलते हैं सर जैसे आपने बताया था हमने ये चेंजेस करते हैं. So I told them मैंने कुछ नहीं बताया था. I am just here to give you food for thought and guide you what is right, what is wrong. You should be, see, nothing is wrong in design actually, but you should be able to introspect yourself. You should be आपको सेल्फ क्रिटिक बनना पड़ता है टू बी अ गुड आर्किटेक्ट. आपको खुद क्रिटिकली अपने डिज़ाइन को देखना पड़ता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसके सारे पॉइंट्स सही हैं. 100% परफेक्ट डिज़ाइन तो कभी भी नहीं होता. वो शायद मेरे हिसाब से परफेक्ट होगा तो मोक्षा के हिसाब से गलत हो जाएगा, कि मोक्षा बोलेगी मेरे को तो ऐसे चाहिए था, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए. तो 100% नहीं होता. और सबका परसेप्शन होता है. बट आई थिंक इफ 80% राइट टिक्स है ना आपके डिजाइन में, आपके डिजाइन 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, देन आई कंसिडर इट अ गुड डिजाइन. So what are your 5 tips for the budding architects? Patience, perseverance and focus. That is the most important if you want to. And don't keep your egos. आजकल के यंग बच्चे ना ईगोस्टिक बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो आप कभी भी अच्छे आर्किटेक्ट बनने के लिए आप ईगोस्टिक होके नहीं चल सकते. एंड दे थिंक अगर उनके प्रोफेसर कुछ ठीक कर रहे हैं, दे थिंक अरे इन्हें क्या आता है. देखो बहुत सारे लोग हैं, आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग टू बी फ्रॉम अ गुड फैमिली, फ्रॉम रिच फैमिली. बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से आते हैं, कई आर्किटेक्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं. उनको लगता है यार हम तो कर ही लेंगे. एग्जैक्टली. मैंने भी एक स्टूडेंट को टीच किया था, तो वो अभी था फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेमेस्टर. मुझे कहता मैम मैं तो डिग्री बस करने के लिए कर रहा हूँ, क्यों ही आप मेरे से वर्कशॉप का काम करा लो. कहता मेरे तो पापा का बिजनेस सेट. हाँ तो यही होता है
वो लोगों के माइंड में पहले आ जाता है, तो वो एक ईगो और एक हाई हेडेडनेस आ जाती है. एंड देन लास्ट थिंग आई वुड से इज डोंट टेक शॉर्टकट्स इन डिजाइन. बाकी जहाँ मर्जी लेने लाइफ में वो तो अपनी अपनी मर्जी है, बट डोंट टेक शॉर्टकट्स इन डिजाइन. आई थिंक बहुत 5 साल में ना जो जनरेशन चेंज होती है, जैसे माई फादर इज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट, बट एक प्रेशर हमेशा पड़ा रहा है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. और आजकल ऐसा है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा तो ऑलरेडी सेटअप है. दे डोंट थिंक दैट दे हैव टू टेक द लेगेसी. कोई आर्किटेक्ट नहीं है मेरी फैमिली में, कोई बिजनेस में नहीं था. मेरे साथ आज तक, मेरे इतने सालों बाद भी आज तक प्रेशर रहता है टू प्रूव योरसेल्फ. एग्जैक्टली, दिस इज हाउ द माइंडसेट हैज चेंज्ड. अब दे थिंक कि वी आर प्रिविलेज्ड, हमारे पास सब कुछ पकी पकाई खीर है, बट दे डोंट नो अगर वो खीर हाथ में आ गई तो क्या आगे उसका करोगे, लेगेसी को आगे कैसे लेके जाओगे, मेंटेन करना. नहीं, ये तो एक एस्पेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कई इस तरह से होते हैं, कई नहीं भी होते हैं. उनको भी ये होता है कि यार मतलब दे आर नॉट रेडी टू लिसन. But for being a good architect, you need to be a good listener. आज तो हम अगर एजुकेशन की बात करते हो, आप प्रोफेसर की आप बात कर रहे थे, प्रोफेसर की नहीं सुन रहे हो, कल को क्लाइंट की तो सुननी पड़ेगी. तुम सुनोगे नहीं क्लाइंट की तो अगली बार क्लाइंट तुम्हारी नहीं सुनेगा. Exactly. You have to understand what the client wants. To understand that, you will have to listen to the client. एंड दे थिंक कि अभी हमें प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कुछ टीचर्स ने दे दिया, डिजाइन का काम दे दिया, अरे इतना काम है करना पड़ रहा है, बार बार चेंजेस कर रहे हैं. बट जब क्लाइंट बोलता है अरे ये प्लान नहीं पसंद आ रहा, देन ऑल्सो यू हैव टू सिट होल डे एंड कभी बार नाइट शिफ्ट भी कि वो प्लान ठीक करने, बिकॉज इट इज योर वर्क, यू हैव टू प्रेजेंट, और वही आपका मार्केट में नाम होता है, उसी से ही होता है. बिल्कुल बिल्कुल. अब हमारे आई हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 15 इयर्स इन द मार्केट. आज भी कई ऐसे भी क्लाइंट आ जाते हैं जो बोलते हैं कि सर पहले आपके बने हुए आपके किए हुए काम दिखाओ, साइट दिखाओ बनी हुई. कोई ऑफिस वाला आएगा तो बोला ऑफिस दिखा लो कोई बना हुआ. सो अंदर से तो आपको कई बार ये लगता है कि व्हाट द हेल, यू वांट टू गेट इट डन और यू डोंट वांट टू गेट इट डन, दिस इज इट. बट देन if you want the project, you have to do some things. Yes. ठीक है सर, thank you. चलो, thank you so much मोक्षा. It was great interacting with you. Same here. बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, and I hope बहुत कुछ आगे भी सबको सीखने को मिला जब वो ये podcast. अभी तो ऐसा क्या सीखने को मिला, but definitely हाँ, if something I spoke can bring a change to someone's mindset or life or some place, I will be the most happiest one. Thank you, sir. Thank you.